بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مومن نہ تو تان کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، اور نہ فحش بکنے والا۔ زبان دراز دینی امور کے اظہار میں کسی ملامت کرنے والے کی علامت سے نہ ڈرو۔ جب کسی کی عیب گیری کا خیال تیرے دل میں پیدا ہو تو اس کے اظہار سے تجھ کو تیرا یہ خیال روک دے کہ مجھ میں بھی کچھ عیوب ہیں۔ خدا کے بندوں میں بہترین بندے وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، اور خدا کے بندوں میں بدترین بندے وہ ہیں جو ادھر ادھر کی چغلیاں لگاتے پھرتے، دوستوں میں جدائی ڈلواتے اور پاک لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ حیا ایمان کی علامت ہے اور ایمان جنت کا ذریعہ ہے، اور بے حیائی گندگی ہے اور گندگی دوزخ کا موجب ہے۔ حیا سے صرف بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔ حیا اور ایمان دونوں باہم ملے ہوئے ہیں۔ جب ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھا، اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔ میں قیامت کے روز 3 آدمیوں کا مخالف ہوں گا۔ اول اس شخص کا جو میرے نام پر عہد کر کے دعا کرے، دوم اس شخص کا جو آزاد شخص کو فروخت کر کے اس کا روپیہ کھائے، سوم اس شخص کا جو مزدور سے پورا کام لے اور اس کی اجرت نہ دے۔ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ اس طرح ممکن ہے کہ دوسرے کے باپ کو گالی دے اور وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں زیادتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ کسی شخص کو دین میں بصیرت زیادہ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کے اعمال میں اعتدال اور میانہ روی نہ آ جائے۔ جو شخص خائن کی پردہ پوشی کرے وہ بھی اس کی مثل ہے جس شخص نے شہرت کے خیال سے کوئی کپڑا اپنا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور رسوائی کا لباس پہنائے گا۔ اپنے مہمان کے ساتھ دروازے تک جانا لازم ہے۔ تم دوسروں کی رائے کی تقلید نہ کرو۔ تم کہتے ہو اگر لوگ ہم سے احسان کریں گے تو ہم بھی ان سے احسان کریں گے، اور ہم پر ظلم کریں گے تو ہم بھی ان پر ظلم کریں گے۔ یہ ٹھیک نہیں، بلکہ اپنے دلوں کو برقرار رکھو۔ اگر لوگ تم پر احسان کریں تو تم بھی احسان کرو، اور اگر برائی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔ تم میں بہتر وہ ہے جو دنیا کے لیے اپنے دین کو نہ چھوڑے اور نہ دنیا کو آخرت کی وجہ سے، اور لوگوں پر بار نہ ہو، اپنے اخراجات کا بوجھ دوسروں پر نہ ڈالے۔ بدگمانی سے بچو کہ بدگمانی بڑی جھوٹی بات ہے، اور کسی کی بات چھپ کر نہ سنا کرو، اور کسی کے عیب کی جستجو نہ کیا کرو۔ لوگوں کے راستے سے تکلیف اور ٹھوکر کی چیز ہٹا دیا کرو۔ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے ناراض ہو کر 3 رات سے زیادہ ترک ملاقات کرے۔ جب وہ دونوں میں سے ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں، ان میں سے اچھا وہ ہے جو سلام کرنے میں سبقت کرے۔ تم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے، سو اگر اس میں کوئی بری بات دکھائی دے تو اسے دور کر دینی چاہیے۔ مسلمانوں کی باہمی محبت و شفقت کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ جب جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو
सारा जिस्म बुखार व बेख्वाबी में मुब्तला हो जाता है। इंसान को लाजम है कि अपने भाई की बीच पर पेच न करे और ना अपने भाई की मंगनी पर मंगनी करे। जो शख्स लोगों में मशहूर करने के लिए कोई अमल करेगा, अल्लाह ताला इसके अयूब लोगों में शाया करेगा और इसको हकीरो जलील करेगा। मैं इस उम्मत में ऐसे शख्स से अंदेशा करता हूँ जो बात तो दनाई की करे लेकिन अमल इसका जालमाना हो। अल्लाह ताला ने अहले किताब के घरों में बगैर उनकी इजाज़त के दाखिल होना हलाल नहीं किया और ना इनकी औरतों को मारना और ना मान के फलों को खिलाना हलाल है। जो शख्स घर में झांके इसको घर में आने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जो शख्स महज अल्लाह ताला के लिए यतीम के सर पर मेहरबानी से हाथ फेरेगा तो हर बाल के एवज इसके लिए भलाई होगी। अल्लाह के नज़दीक सब घरों में महबूब तर घर वो है जिसमें यतीम की इज्जत की जाती है। जो शख्स यतीम को अपने खाने पीने में शरीक करेगा, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत वाजिब कर देगा, बशर्ते कि वो किसी ऐसे गुनाह का मुर्तकिब न हो जो मुआफ़ी के काबिल न हो। अफू करने से अल्लाह ताला आदमी की इज्जत बढ़ा देता है। 3 किस्म के आदमी जन्नत में दाखिल न होंगे, एक धोखा देने वाला, दूसरा बखील और तीसरा एहसान जताने वाला। जिस शख्स से कोई इल्मी मसला पूछा जाए वो इसे छुपाए तो क़यामत के दिन ऐसे शख्स के मुंह में आग की लगाम डाली जाएगी। जब जालिम को जुल्म करता देखें और इसके हाथ न पकड़ें तो अनकरीब अल्लाह ताला इस पर अजाब आम नाज़िल करेगा। मैं अहमकों की हुकूमत से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। तंदुरुस्ती की हालत में आदमी का 1 दिरहम सदका करना मौत के वक़्त 100 दिरहम सदका करने से अफजल है। जो शख्स दूसरे मुसलमान को काफिर कहता है तो इन दोनों में से एक ज़रूर काफिर हो जाता है। जब तुम तारीफ में मुबालगा करने वालों को देखो तो इनके मुंह में खाक डाल दो, यानी इनकी खुशामद को कबूल न करो। कोई मर्द किसी मर्द के सतर पर नज़र न डाले और कोई औरत दूसरी औरत के सतर पर नज़र न डाले। न मर्द एक कपड़े में बरहना जमा हों, न औरतें एक कपड़े में बरहना जमा हों। मजलिस में कोई शख्स दूसरे को अपनी जगह से उठाकर खुद न बैठे लेकिन खुल कर बैठ जाओ और जगह फराग कर दो, खुदा तुमको बाफरागत जगह देगा। वो शख्स हमारे गिरोह से नहीं जो झूठों पर रहम न करे और बुजुर्गों का अदब न करे। अल्लाह ताला इस शख्स पर रहम फरमाता है जो खरीदने बेचने और तकाजा करने में नरमी इख्तियार करे। जिस शख्स को ये बात अच्छी लगे कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसे तकलीफ से निजात दे तो इसे चाहिए कि तंग दस्त मकरूज को मोहलत दे या सारा कर्ज माफ़ कर दे। जो गुरूर की वजह से अपने कपड़े को दराज रखेगा, क़यामत के दिन खुदा ताला इस पर रहमत की नज़र डालेगा। हर उम्मत के लिए एक फितना है, मेरी उम्मत का फितना माल है। दौलतमंदों के पास कम जाया करो वरना खुदा के एहसानात की कदर जाती रहेगी। वो शख्स बदतरीन इंसानों में सबसे बुरा है जो लोगों की खताओं से दरगुजर नहीं करता, माजरत को कबूल नहीं करता और किसी गुनाहगार के गुनाह मुआफ़ नहीं करता। जो शख्स इस उम्मत पर तफरका पैदा करना चाहे इस वक़्त जबकि तमाम कौम मुतफ़िक हो चुकी हो, इसकी तलवार से खबर लो ख्वाह वो कोई हो। अगर लोग ये जान लें कि रात को तन्हा सफ़र करने में क्या ख़दशात मुज़मिर हैं, जो मैं जानता हूँ तो रात को कोई शख्स अकेला सफ़र न करे। सफ़र अजाब का एक टुकड़ा है जो तुम्हें खाने पीने और आराम करने से बाज रखता है। बस तुम में से जब कोई अपना मकसद हासिल कर ले तो इसे चाहिए कि
अपने घर बार की तरफ लौट आने में जल्दी करे। जब तुम में से कोई शख्स बहुत दिनों तक सफर में रहा हो तो वो रात के वक्त अपने अहले खाना में अचानक ना आ जाए। आदमी के लिए यही गुनाह काफी है कि जिनकी परवरिश और खबरगिरी इसके जिम्मे है, इनकी खबरगिरी न करे और इनको ज़ाया कर दे। किसी बाप ने अपनी औलाद को नेक अदब से अच्छा कोई अतिया नहीं दिया। बदतरीन शख्स वो है जो दो मुंह रखता है, एक मुंह से एक के पास जाता है और दूसरे मुंह से दूसरे के पास जाता है। जो गुनाह सबसे ज़्यादा इंसान को जहन्नम का मुस्तहिक बनाते हैं वो ज़ुबान और शर्मगाह के गुनाह हैं। जो शख्स झूठी कसम खाए वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। सबसे बदतर खाना इस शादी का है जिसमें मालदार बुलाए जाएं और मोहताज छोड़ दिए जाएं। और जो शख्स बिला उज़र दावत कबूल न करे इसने खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाफरमानी की। फासिकों की दावत कबूल न करो। सूद खाने वाले, खिलाने वाले, कातब और गवाह सब बराबर हैं, सब पर खुदा की लानत। नाजरीन, कैसी लगी आपको हमारी कावश? ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए अच्छा सा कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।